અમે કેવા પુણ્યશાલી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આદે નિહારી. ભગવાનની ભૂમિકા આદ અમે કેવા ભાગ્યશાલી, બ્રેકઅપ થાય છે. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી. પાસે મુક્તિની ચાવી ભાડી. અમે કેવા પુણ્યશાલી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, આગમ સ્વરૂપ થાવો એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્ત ક્રમશમાં આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. સપ્ત ક્રમશમાવું આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. વાંદાની વચ્ચ કાશ, વાંધાની વચ્ચ કાસવ, અજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીધી ઉડાવી. અજ્ઞાનમાં તાઓ એને દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાલી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાલી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નવ કલમમાં ઓલ્ટરનેટ કરો. श्रेया? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मानो किंचित मात्र पण अहम न दुभाय न दुभावाय के दुभाववा प्रत्ये न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે ન દુભાય કે દુભાવ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ન किया जाए, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતેલી ભાષા બોલે, તમને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો.
हे दादा, भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो, पर निरंतर निर्विकार रहवानी परम शक्ति आपो। हे दादा, भगवान મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્ત બનવું ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा, भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામીનારો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ન किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। हे दादा, ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. ओके, सुजात्मा पति प्रार्थना। श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद. हे અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવાત્મા બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વે દોષોની આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરીથી એવા દોષો ન કરો એવી આપને પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. હું તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તમને આભાર રહીએ. જય સચિદાનંદ. दरिया, आपको कौन सा प्रेयर आता है? मम्मी ने क्या सिखाया? मुझे तो अभी वो आती शुद्ध आत्मा की प्रार्थना है। अच्छा, बोलिए प्लीज। हे અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજમાન છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતા કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વ દોષોને હું આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું અને તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. મને અને ફરી એવા દોષો હું ક્યારે પણ ન કરું એવી આપ મને પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ મને એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય અને અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મય આકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. वेरी गुड, वेरी गुड. हो, कल दूसरा करने का. ओके, जय सच्चिदानंद. नवनिधि, ये तो मैं हर रोज रात को बोलता हूँ, इसीलिए आती है मुझे. तो दूसरा नया कुछ नहीं सीखा? नहीं. क्यों? पता नहीं. टाइम नहीं मिलता है. मेरे पास तो टाइम होता है लेकिन मम्मी के पास होना चाहिए. ओके. मम्मी का पूरा शेड्यूल बिजी है. हाँ, तो आप खुद स्टडी करो ना. हाँ, और दीपक दादा ने तो भेजा है ना, तो मम्मी की क्या जरूरत है? मम्मी की जरूरत होती है? बोलो. तो क्या मम्मी के फोन पर भेजा होता है तो मुझे नहीं पता होता कभी किस फोन पे भेजा होता है, तो मुझे मम्मी बता देती है अपने आप के अगर उनके फोन पर आया हो तो. ओके, ओके. जय सच्चिदानंद. केशवन जी. केशवन जी, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय श्रीमंत बुलाए प्लीज. हाँ. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय.
नमो अरिहंताणम। नमो नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयर्याणम। नमो उवज्जायाणम। नमो नमो लोये सव्व साहुणम। नमो ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो सव्व पावपणासनो। मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगलानां परमं हवै मंगलम। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय मोनिका सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। ज़रा पेरेंट्स के साथ आज पेरेंट्स के साथ अपना श्रेया हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय नवनीत दीदी हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं आपके आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, बच्चे फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। Okay, very good, Daksh. He should that one apple goes the shell again. He should that one up permanent to the temporary. He should that one up here to the creative and Jai Satchidanand. Shreya, हाँ जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। okay, very good. टोरल आपको आता है हेल्थ बेनिफिट्स? हाँ, बोलो। स्वस्थ शरीर हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। हे दादा भगवान, मुझे इस समय में शक्ति दो। दक्ष स्टडी।
नहीं आता है। देव दीदी आपको आता है, याद है? नहीं। ओके, मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और निकटता से अज्ञान करने से उत्कृष्ट गुण देगा और अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगा। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आपको। जय सच्चिदानंद। श्रेया। સત્યનારાયણ. દરરોજ નિષ્ઠાપૂર્વક બધા સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે, મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા 3 ધ્યેયોને સિદ્ધ કરાવશે, મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારું વ્યવહાર સુધારશે, દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે અને તેમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપે. वेरी गुड। ओके, आज प्रतिक्रमण कितना किया मोनिका? आज मैंने सिर्फ एक बार किया था। एक ही दफा? हाँ, मैं बाकी अभी सोने से पहले किस पे किया था? वो आज करिश्मा के साथ गुस्से से व्यवहार किया था। बस वो एक ही मिस्टेक किया दिन में? नहीं, बहुत की थी मुझे। अच्छा, एक किया। श्रेया। हाँ, मैंने प्रतिक्रमण एक बार किया था क्योंकि सुबह को मैं लेट हो गई थी तो मम्मी थोड़ा गुस्सा हो। दरिया, प्रतिक्रम करते हैं? नहीं। नहीं। नवनीत दीदी? मैंने आज नहीं किया। नहीं किया था। तोरल? मैंने आज नहीं किया से पहले कोई मिस्टेक ही नहीं किया आज? किया था। प्रतिक्रम नहीं किया। दक्ष? जय सच्चिदानंद। आज मैंने प्रतिक्रमण नहीं करा था क्योंकि मैंने आज किसी के साथ भी 5th कलम ब्रेक नहीं करी। सब कलम में पास हो गया? हाँ। साक्षीबा? जय सच्चिदानंद। आज मैंने प्रतिक्रमण किया था 1 टाइम, मेरी फ्रेंड का। किसके किया था? मेरी फ्रेंड का प्रतिक्रमण किया था क्योंकि मुझे उस पर गुस्सा आया था और उसको भी मुझ पर गुस्सा आया था। ओके, करो, प्रतिक्रमण करो। हाँ, प्रतिक्रमण करो, हम सुनेंगे आप क्या किया आपने। प्रत्येक श्रद्धा भगवान साक्षी दे धारे साजना मन वचन कार्य ना भाव कर्म न कर्म द्रव्य कर्म नहीं रही शुद्धता भगवान આજે મારાથી જે દોષ છે મારા બેની વચ્ચે ઝઘડો થયો એની હું ક્ષમા માંગુ છું. આલોચના પ્રતિક્રમણ વ્યાખ્યાન કરું છું. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરીથી એવા દોષો ના કરો એવી તમે મને શક્તિ આપો. શું કર્યું છે? કેમ ગુસ્સે આવ્યો તો? હા, કારણ કે મને એની બુક જોતી હતી ને ન આપી અને મેં ખેંચીને લઈ લીધી. ગુસ્સો આવ્યો. કેમ તમારે એની ચોપડી લેવાની શું કર્યું? એની ચોપड़ी શા માટે જોઈએ? आपको क्यों मांगते हैं उसकी दूसरे की चौपड़ी? उसने मेरी बुक ली थी, उसने मेरी बुक ली थी और दे नहीं रही थी, इसलिए मैंने खींच के ली। इसलिए हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। आवाज बहुत आता है आप में, तो आप पद कैसे गाएंगी? एक मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। ओके ओके। आज किसको टाइम नहीं मिला था? सूर्य नमस्कार और योगा, ब्रेन योगा करने का किसको टाइम नहीं मिला था आज? दारिया, क्यों नहीं मिला था? मैं हर रोज सुबह जल्दी उठकर मतलब है ना तुरंत स्कूल से निकलना होता है, आके थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, बाद में क्लास होती है, बाद में मेरा प्रैक्टिस होता है। एक तो है तो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, बाद में खेल कर आता हूँ, खाता हूँ, बाद में मेरे सत्संग के पहले क्लास होती है वो अटेंड करता हूँ खाते खाते, बाद में अटेंड करने के बाद मैं अपना कंप्लीट करता हूँ, बाकी वर्क और सो जाता हूँ। सारा दिन में 10 मिनट नहीं मिला? मिलता है तो मतलब थोड़े टाइम वॉशरूम में
टीवी देखा था? देखते तो है लेकिन टीवी देखा था? देखा तो था, आज देखा था, बाकी ज्यादा नहीं तो देखता। ओ टीवी फायदा करेगा कि सुपर ब्रेन योगा और सूर्य नमस्कार फायदा करेगा? बाकी तो मैं ना मतलब वैसे भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता ही हूँ, योगा नहीं करता। हमने उसे ऐसा पूछा क्या करते नहीं करते? हाँ, जो पूछते हैं उसका जवाब देने का। ओके, तो ये मार्शल आर्ट करते तो उससे और सुपर ब्रेन होगा और सूर्य नमस्कार के क्या ताल्लुक है? There's no connection. ऐसा इसीलिए मार्शल आर्ट करता हूँ ताकि मतलब मेरा मतलब अच्छा There's रहे। no हमारे connection. यहाँ कोई मार्शल आर्ट होता है। दरिया, आप चलो दूसरे का बातें सुनने का प्रैक्टिस करो। ओके, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, टीवी नहीं इंपॉर्टेंट है। ओके, टीवी में कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ओके, श्रेया कितना किया था? हाँ जय सचिदानंद, मैंने आज सुपर ब्रेन योगा 40 टाइम्स किया था और सूर्य नमस्कार नहीं किया था। 40 टाइम सूर्य नमस्कार क्यों नहीं किया? वो आलस आ गई। और ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे बोलो। मोनिका? जय सच्चिदानंद, आज मैंने सूर्य नमस्कार 3 टाइम्स किया था और सुपर ब्रेन योगा 11 टाइम्स की थी। इसे तो अपना कोटा कंप्लीट हुआ? नहीं, सूर्य नमस्कार आज मुझे 6 टाइम्स करना था, बट मैंने 3 टाइम्स ही किया था। कितना टाइम लगता है सूर्य दूसरा 3 करने का? Doesn't take क्या more था? than doesn't take more than 3 minutes to do another. खुशी? हाँ, हाँ, मैंने आज सूर्य नमस्कार 2 टाइम्स किया और सुपर ब्रेन योगा मैंने 11 टाइम्स की। क्यों 2 टाइम्स किया? वो बहुत आपका सुपर ब्रेन बहुत सुपर ब्रेन है इसलिए कम करने का? नहीं, हाँ, ऐसा लगता है कि आपको यू थिंक यू आर सुपर वुमन। नो नहीं दीदी। सच्चे अपने सुपर सूर्य नमस्कार मैंने नहीं किया। नहीं मैं ये भूल सुनाई नहीं देता है। नो दीदी। आज मैंने सुपर ब्रेन योगा 20 टाइम्स किया था और सूर्य नमस्कार मैंने नहीं किया। मैं क्यों? भूल गई थी। और हाँ आज मैंने सूर्य नमस्कार 4 टाइम्स किया और सुपर ब्रेन योगा मैंने 15 टाइम्स। वेरी गुड। टक्स? जय सच्चिदानंद, मैंने सूर्य नमस्कार 10 टाइम्स किया और सुपर ब्रेन योगा 11 टाइम्स। वेरी गुड। तक्सीबा? जय सच्चिदानंद, आज मैंने सुपर ब्रेन योगा 10 टाइम्स किया था और सूर्य नमस्कार सिर्फ 3 टाइम्स किया था। क्यों? क्योंकि फिर 2 टाइम करने में आलस आ गई थी बहुत, इसीलिए। अरे 5 आरस टाइम्स मत कर बोलो। दस है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगा आज। यू नीड टू बी वेरी डेफिनेटिव ने। सिंसियरिटी में क्या होता है? आरस आता है सिंसियरिटी नहीं करते तो क्या उसका मीनिंग क्या होता है? तक्सीबा? हम नॉट उसमें सिंसियर। इम्पोर्टेंट, don't want to do it. Okay, all that attitude, when you start making those attitudes or multiplied attitude करे तो क्या नतीजा आएगा? केशव दादा इन लोग को समझाओ। ये नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप करके क्या हो सकता है? इसमें क्या होता है, दादाजी क्या बोलते हैं कि सिंसियरिटी, वो क्यों दादा ने इतना बड़ा शब्द बोला कि दादा से पूछा गया कि दादाजी आपकी कृपा किन किन लोगों पे होती है, क्योंकि सब लोग कृपा के लिए तरसते हैं, दादाजी की आशीर्वाद मिले तो आप सबको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दादाजी इधर हाजिर होके सबके सर पे हाथ रखे और उनको आपको आशीर्वाद दे, तो दादाजी सबके गुण देखते थे और गुण देखने के बाद
आशीर्वाद देते थे और उनके ऊपर बहुत कृपा बरसाते थे। तो कृपा कैसे ज्यादा मिलती है? तो दादा ने सबसे पहला शब्द क्या बोला कि जो सबसे ज्यादा सिंसियर और मॉरलिटी में रहता है उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा रहती है, खास कृपा। तो हमारे इस पूरे अभियान के अंदर, फिर चाहे हम योगा करते हैं, फिर चाहे हम ये जो सत साधन करते हैं, या फिर हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो हर एक जगह पे सिंसियरिटी पहला शब्द आता है। अगर सिंसियरिटी नहीं होगी हर एक चीज में तो दादा की कृपा नहीं प्राप्त होगी, और अगर दादा की कृपा प्राप्त नहीं होगी तो हमारी प्रगति नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा वर्तन, हमारा स्वभाव, हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि दादा की आशीर्वाद मिले, दादा हमारे पे खुश हो। हम सब आप तो पुत्र आखा दिन दादा को पकड़ के उनके रूम में क्यों रहते थे कि हम बार बार तरसते थे कि दादाजी की हमारे पे कृपा हो, दादाजी की हमारे तरफ उनकी आंखें का दर्शन देवे, दादाजी हमारे तरफ देखे, ऐसा तरसते रहते थे। तो वो जब ऐसी तड़प और ऐसी तरस पैदा होती है ना, तब दादा की कृपा होती है। और हमको तो दादाजी की कृपा का प्राप्ति तो करनी है ना, कि नहीं करनी है? करनी है। हाँ, अगर दादाजी की कृपा प्राप्त हो तो दादाजी के लिए सबसे बड़ा परम विनय होना चाहिए। जो दादा बोलते हैं, जो दादा आज्ञा देते हैं, तो उसका पालन करेंगे तो तभी हमारा परम विनय प्रकट होगा। और परम विनय होगा और हम सिंसियर और मॉरल रहेंगे तो दादाजी की खूब आशीर्वाद मिलेगी। और दादाजी की आशीर्वाद मिल गई तो फिर आपकी प्रगति इतनी अच्छी होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी कल्पना से बाहर प्रगति होगी। आपका अंदर का स्वभाव अच्छा हो जाएगा, आपका मम्मी पापा और अपने भाई बहनों के साथ वर्तन अच्छा हो जाएगा, आपकी पढ़ाई में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, आप जो भी काम करते हैं घर में, फिर जो भी काम करते हैं उस हर जगह पे आपका प्रोग्रेस होगा। किसी हर एक चीज के बाद कोई भी हम एक्शन करते हैं उसका एग्जैक्टली अपोजिट और उसका रिएक्शन आता है कि नहीं आता है? साइंस बोलती है ना, आप जो कुछ डालोगे, जो कुछ सुपर कंप्यूटर पावर में आप अपने रेस भेजोगे, अपनी भावना भेजोगे, अपने विचार भेजोगे, वहां से 100% वापस आएंगे और आपको प्रगति की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए प्रतिक्रमण क्यों बोला दादा ने करने के लिए कि जो चीज में हम भूल जाते हैं, या किसी को दुख देते हैं, या किसी से लड़ाई करते हैं, या किसी से गुस्सा होते हैं, तो उसके अंदर बैठे हुए भगवान को हम दुख देते हैं। तो उसके अंदर बैठा हुआ भगवान क्या नोंद करता है कि उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, तो वो फिर आपको सामने से उसका बर्ताव फिर ऐसा आपके पास आएगा, और धीरे 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 आपका हिसाब ऐसा बढ़ता जाएगा कि आपके आसपास भी जो कोई भी होगा वो आपको ऐसा हिसाब दे देगा, और फिर आते जन्म में भी उसके साथ भारी हिसाब हो जाएगा। वो आपको हिसाब देने, अगर अभी इस बार आप बहुत पावरफुल हो, किसी को दुख देते हो, तो वो सह लेगा, पर अपने अंदर नोंद करेगा कि मेरा टाइम आएगा तो मैं उसको बरोबर सिखाऊंगा, मैं उसको बरोबर सीधा करूंगा। तो हमको ऐसे अभी तो हमारे पास इतना दादा का अच्छा विज्ञान है, इतनी समझ है, तो हम ऐसे कैसे किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, किसी के साथ गलत बोल देते हैं, अपनी वाणी गलत निकल जाती है। हमारे को हर एक जगह पे हम जो कुछ करते हैं उसके ऊपर वॉच रहना चाहिए कि हम क्या करते हैं पूरे दिन में, और एक एक प्रतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हम सुबह से लेके शाम तक हमका कितना टाइम, कितनी चीजें गलत हो जाती है, तो रात को सोने के पहले 5-10 मिनट बैठ के पूरे दिन में कहाँ कहाँ पर गलतियां हुई, किस किस को दुख दिया, ऐसा रिकलेक्ट करके प्रतिक्रमण करने चाहिए, जब तक कि आपके पास शूट ऑन साइट का प्रतिक्रमण नहीं शुरू होता है। शूट ऑन साइट का प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है कि अभी अभी आपके फ्रेंड के साथ गुस्सा हो गया तो ऑन द स्पॉट उसके अंदर बैठे हुए भगवान से माफी मांग लेने का, शाम को आके रात को आके माफी लेने का तो बहुत टाइम हो जाता है। तो हमको उस स्टेज पे पहुंचना है। जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण करने का, तब तक हमको क्या करना है, रात को सोने के पहले हमको पूरे दिन का जो भी हैपनिंग्स हुआ वो कैसेट को रिवाइंड करके एक एक चीज देख लेने का, और प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी है, सबका एक एक का प्रतिक्रमण कर डालने का। अगर हम रोज उसको साफ नहीं करेंगे, घर को साफ नहीं करेंगे, तो प्रतिक्रमण जो पेंडिंग हो जाएगा, तो बहुत प्रतिक्रमण करना बाकी हो जाएगा, तो वो आपको अंदर से सुख नहीं मिलेगा,
आपको अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। सब अंदर आपको पेंडिंग 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 रहेगा, और उस पेंडिंग रहने से आप अच्छी तरह से कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपका चित्त हमेशा ऐसा याद रहेगा कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ ऐसा गलत काम किया, उसको मैंने गुस्सा किया। तो ऑन द स्पॉट उसको क्लीन करना पड़ता है। अतिक्रमण हुआ, उसको दुख हुआ, ऑन द स्पॉट क्लीन करो। और जब तक ऑन द स्पॉट नहीं होता है तो रात को बैठ के सोने के पहले 15 मिनट 20 मिनट निकालने का, और पूरे दिनचर्या को देख के कहाँ कहाँ आपने किसको किसको दुख दिया उसको सबको रिकलेक्ट करके माफी मांग लेने की। तो ये जो नियम है और ये जो सिस्टम बनाई है उससे ये साइंटिफिक है, क्योंकि जैसे जैसे आप उसका अंदर बैठे हुए भगवान से माफी मांगते जाओगे तो उनका अंदर बैठे हुआ भगवान आपको माफ कर देगा। तो आपका स्लेट साफ होता जाएगा, आपका क्लियरेंस मिलता जाएगा, और क्लियरेंस मिलेगा तो उसके अंदर बैठा हुआ भगवान आपको आशीर्वाद देगा। तो हमको ये देखना है कि हमारे वर्तन से, हमारे स्वभाव से, हमारी हर एक क्रिया से जीव मात्र को आपके तरफ से सुख मिलना चाहिए, किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। तो फिर हम कैसे किसी के साथ लड़ जाते हैं, किसी के साथ गुस्सा हो जाते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। हमको ये ऐसा करने की वजह से सबसे पहले तो ऐसा करते हैं तो आपको दुख नहीं होता। किसी को आपने गुस्सा किया, उसको बुरा लगा, तो आपको भी तो बुरा लगता होगा ना मन में, नहीं लगता है? लगता है। हाँ, तो किसी को दुख देने के पहले हमको खुद विचार करना चाहिए। दादा बोलते हैं कि सामने वाले को इतना दुख होता है तो कोई अगर आपसे गलत व्यवहार करे या आपको कुछ गलत बोल दे तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा, ऐसा हमेशा सोचने का। ऐसा सोचने से फिर सामने वाले को दुख देना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है वो दूसरों को नहीं देने का, ऐसा नियम करने का। सही है? ठीक है, हाँ। सबको मालूम पड़ गया? दीपकांत जी, you want to say something? देखो दादा भगवान ने क्या बताया था कि ज्ञान खुलने से पहले बिफोर 1958 हमारे पास दो क्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी, और वो थी टोटल सिंसियरिटी एंड मॉरलिटी, और उसका एक फैक्टर ये भी है प्योरिटी का। दादा भगवान हमें भी कई बार बताया कि आप प्योर हो जाओगे, आपका कोई नाम नहीं लेगा और कोई परेशान नहीं करेगा। अभी तो हम लोग ही आपको बहुत परेशान करते हैं ना, बोलते हैं, डांटते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है? हाँ, बोलो ना। अच्छा पिताजी को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, हाँ बोलते हैं सब। मोनिका हाँ बोला? क्या बोलते दक्ष? अच्छा लगता है? हाँ लेकिन हमको हमारे अंदर दादा भगवान बहुत डांटते हैं, फिर बोले मेरे बच्चे को आप क्यों डांटते रहते हो ऐसा करके। लेकिन धीमे धीमे आप अच्छी प्रगति कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, बताते जाते हैं, और उसके लिए जो प्रतिक्रमण की समझ दी है और सुपर ब्रेन योगा, डिसीजन, प्रतिक्रमण, सुपर ब्रेन योगा, वो सब कुछ स्ट्रेट लाइन में रिजल्ट देगा। इट्स अ जर्नी, रातों रात तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये फोकस में रखना है कि हमें दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बनना है ना, उत्कृष्ट। क्या बताया, क्या कैसे बनना है उत्कृष्ट? हाँ, व्यक्तित्व की मानवी, उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी। वो पर्सनालिटी कैसे होती है ना, वो मैं भेजूंगा आपको, बड़ा अच्छा है वो। तो आपको अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसा करना है। अभी अभी भी आप मोटिवेटेड ही हो, लेकिन फिर रिजल्ट आने लगेगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। और आपका प्रोग्रेस इज वेरी गुड। अभी थोड़ा सिस्टमेटिक स्टडी होता है कि नहीं होता है अभी? हाँ। दरिया, आपको भी अभी रिपोर्ट लिखने का, और दरअसल को तो नहीं लिखने का है, राइट दरअसल?
आज भेजा, सबने भेजा एक्सेप्ट दरिया और आपने। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड प्रोग्रेस। अभी इस स्टडीज में सिस्टमेटिक आ गया, ये दोनों एक्सरसाइज में सब। दरिया यू मस्ट डू इट। ओके, मार्शल आर्ट इज नो कॉम्प्रोमाइज। दीपक दादा, उसको मम्मी को जरा आपको बोलना पड़ेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।